Thank you for taking. Today's topic is role of clinical pharmacist in multidisciplinary team. As pharmacists, we play an integral role in optimizing therapeutic outcomes and ensuring patient safety through close collaboration with other healthcare professionals. The clinical pharmacist's involvement in multidisciplinary team is essential to enhance medication management, improve communication, and contribute to better health outcomes. Today's session will explore this pivotal role and highlight how clinical pharmacists can make a difference in patient-centered care. Now, I am very pleased to introduce our esteemed speaker for today. We are honored to have Mr. Mohammad Gulzaib with us. He is an ASHP certified pediatric pharmacist and also serves as an adjunct lecturer at Shafat Amir Millet University. Mr. Gulzaib brings significant expertise and experience in pediatric clinical pharmacy practice. His work focuses on ensuring safe and effective medication use in pediatric populations and advancing the practice of clinical pharmacy through education and interdisciplinary collaboration. His perspective on integrating pharmacists into multidisciplinary teams, especially in pediatric care, will be of great value to all of us. We are excited to have Mr. Mohammad Gulzaib with us and provide an in-depth view of the role of clinical pharmacists within a multidisciplinary healthcare team. To make this session interactive, we encourage you to actively participate by asking questions through the question and answer chat box. Kindly ensure that all questions are relevant to the topic. Without further delay, I'll hand over the session to Mr. Mohammad Gulzaib. Over to you, sir. Thank you, Talan. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining today's session on role of clinical pharmacist in multidisciplinary team. A team is more than just a group of professionals. It is coordinated effort with a common goal. In healthcare, one of the biggest concerns is medication safety. Studies show 1 in 10 hospital admission involved in a medication error. However, when clinical pharmacists are involved, this error can be reduced by up to 80%. So I will discuss how do a clinical pharmacist contribute to multidisciplinary team to make a significant impact. Before we explore the clinical pharmacist role and contribution in the multidisciplinary team, let's start with a quick quiz. Please take a moment to answer the poll. First question, Aji, what is the primary benefit of involving a clinical pharmacist in decision-making process during multidisciplinary patient care round? Option 1 है clinical pharmacist can prescribe medication directly to patient, thus reduce delay in care. Option 2 है जी provides specialized knowledge on drug formulation which is critical for all patient. Option 3 है enhance the team ability to assess and manage the pharmacological aspect of patient care, improve therapeutic outcome. Option 4, they are most qualified to decide which medication to discontinue or avoid in patient treatment plan. Can you tick the appropriate option in question box? Second question है which of the following best describe therapeutic drug monitoring? Option 1, monitoring blood sugar with a glucometer. Option 2, adjusting ventilator setting. Option 3, measuring and maintaining safe drug level in body. Option 4, monitoring blood pressure every hour.
Thank you so much for your responses. क्वेश्चन 1 का आंसर था क्वेश्चन 2, measuring and maintaining safe drug level in the body. क्वेश्चन 3 का आंसर था comparing and verifying a patient medication list to prevent the error. Question 4, reducing medication error that lead to increased length of stay or readmission. Question 5, optimizing medication therapy for better patient outcome. Clinical pharmacists play a vital role in multidisciplinary team by providing specialized knowledge and expertise in medication management. Pharmacists' contributions are essential for optimizing patient outcome, reducing medication-related errors, and improving the overall clinical outcome. अगर फार्मासिस्ट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो किस बेस पे करता है, वो क्या क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर प्ले करता है कि वो इन चीज़ों को अचीव करता है। तो उसमें इंटीग्रेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, फार्मासिस्ट जो वार्ड राउंड डेली बेसिस पे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, जो केस डिस्कशन अमंग फिजिशियन, नर्सेस और फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं और रिस्पिरेटरी थेरापिस्ट। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। उन केस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है और अपना इनपुट देता है कि कौन सी ड्रग कौन सी डिजीज़ के लिए किस कंडीशन के लिए दी जा सकती है पेशेंट को। उसके बाद प्रोवाइड रियल टाइम फार्माकोलॉजिकल इनपुट होते हैं, अलाइन फार्माकोथेरेपी विद द क्लिनिकल गोल्स, लाइजन बिटवीन डिपार्टमेंट फॉर मेडिकेशन रिलेटेड मैटर्स। अगर आप ओवरऑल क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल देखें तो उसमें सबसे पहला यही होता है मेडिकेशन रिव्यू। चाहे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, उसका प्राइमरी टास्क होता है कि वो जितनी भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होती है उनकी असेसमेंट करना है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू करना है। अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के अंदर पेशेंट की लैब, उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसकी डोज को देखना, उसके क्रिएटिनिन क्लियरेंस के अकॉर्डिंग उसकी डोज एडजस्टमेंट करना, उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को देखना। अगर कोई और कोमॉर्बिड साथ में है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंट्राइंडिकेशन वगैरह या उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, उसके एडीआर को मॉनिटर करना। ये सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये फार्मासिस्ट की होती हैं। उसके बाद थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी होती है? उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको जो ड्रग उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग, पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी आपको डोज चाहिए होती है, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर चाहिए होती है, वो आप थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। जिससे एक तो अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो उनकी रेजिस्टेंट कम होती है, एंटी सीजर की बात करें तो उससे क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है और पेशेंट का बेनिफिट होता है। तो जब अप्रोप्रिएट ड्रग आप दे रहे होते हैं तो उसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं और साइड इफेक्ट और बाकी चीज़ों की वजह से, मेडिकेशन एरर की वजह से जो पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे होता है वो कम होता है। उससे कास्ट, जो ओवरऑल ट्रीटमेंट कास्ट होती है वो कम होती है। जितना पेशेंट हॉस्पिटल में उसका स्टे कम होगा उसकी वजह से उसके एक तो कास्ट इफेक्टिवनेस होती है, दूसरा ये होता है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे पेशेंट को बचाया जा सकता है। पेशेंट एजुकेशन में प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशंस कि कब मेडिकेशन लेनी है, उसके जो मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। समटाइम पेशेंट साइड इफेक्ट की वजह से मेडिसिन लेना छोड़ देता है क्योंकि वो साइड इफेक्ट आते हैं तो वो कहता है मे बी ये मेडिसिन मेरे लिए बेनिफिट नहीं दे रही, तो वो मेडिसिन प्रॉपर लेना छोड़ देता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो वो पेशेंट की रिकवरी नहीं होती। तो उनके ओवरऑल जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं उनका बताना कि क्या क्या साइड इफेक्ट उसके आ सकते हैं। एडीआर मॉनिटरिंग। एडीआर मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि देखिए जब भी कोई मेडिसिन देते हैं तो जहाँ पे उसके बेनिफिट्स होते हैं उस वहाँ पे उसके
एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना और इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि आप उनके अगेंस्ट अगर देखें, कुछ एडीआर जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, ताकि उनके अगेंस्ट आप कोई ऐसी स्ट्रेटजीज कर सके जिसकी वजह से उसके एडीआर प्रिवेंटेबल हो सकते हैं। समटाइम किसी प्रोडक्ट का इशू होता है, कुछ भी होता है, तो अगर फ्रीक्वेंटली वो एडीआर रिपोर्ट हो रहे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर फर्दर एक्शन ले सकते हैं। एंटी बायोटिक स्टीवर्डशिप एक बहुत बड़ा टास्क है जो फार्मासिस्ट ओवरऑल हॉस्पिटल के अंदर इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जितनी भी एंटीबायोटिक जा रही हैं उनका अप्रोप्रिएट और जस्टिफाई यूज़ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक अनजस्टिफाई यूज़ होती हैं तो उससे रिस्क ये होते हैं कि रेजिस्टेंट बढ़ सकती है। तो उस पर काम कर रहे होते हैं। पेन मैनेजमेंट में हर एक पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर वो वेंटिलेटर पे आईसीयूज में है तो उसकी पेन मैनेजमेंट कंपलसरी होती है। तो पेन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी ड्रग दी जा सकती हैं, उनके कौन कौन से कम्बिनेशन दिए जा सकते हैं, और जो ड्रग पेन जिस तरह हमारे पास ओपियाइड्स होते हैं उनके विड्रॉल इफेक्ट होते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, और पेन मैनेजमेंट की जो ड्रग होती है उनकी एफिकेसी को कैसे इनहेंस किया जाता है। फार्मोलरी मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिसमें वो ओवरऑल एवेल्युएट करता है ड्रग को। उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे ड्रग की एफिकेसी होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, उसकी स्टोरिक कंडीशंस होती हैं, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, और उसके लिए कोई स्पेशल मॉनिटरिंग पैरामीटर तो नहीं रिक्वायर होते, या उस कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स वगैरह तो नहीं है जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर हैं। तो उनके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट अपनी एक सारी एवेल्यूएशन करता है और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देता है कि क्या ये मेडिसन एक इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव जो मेडिसन वो पेशेंट को दी जा सकती है या नहीं। तो वो फार्मलरी में इस तरह अपना रोल प्ले करता है। ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, देखिए जितनी भी अपडेटेड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उनको डेली बेसिस पे रिव्यू करना, और उसमें कोई भी चेंजिंग आती हैं, ठीक है, किसी ड्रग की कम्बिनेशन में जो भी चेंजिंग आती हैं उनको रिव्यू करना, और फिर नर्सेज और डॉक्टर्स को इसके रिलेटेड, और बाकी जो हॉस्पिटल स्टाफ्स होते हैं, हेल्थ केयर होते हैं, अपनी फार्मेसी टीम होती है, उसको अपडेट करना कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। रिसर्च और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे मेडिकेशन सेफ्टी को इनहेंस किया जा सकता है। और मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन, इंश्योर एक्यूरेट मेडिकेशन लिस्ट टू प्रिवेंट द एरर, कि जब भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो घर में वो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, या फिर हॉस्पिटल से क्रिटिकल एरिया से वो फ्लोर पे शिफ्ट हो रहा है, या फिर वो डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं जो आप क्रिटिकल एरिया में पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो वो घर में नहीं दे सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को रिव्यू करना, ताकि कोई भी इन मेडिसिन की वजह से कोई एरर ना हो जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रोल जो डेली बेसिस पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है उसमें रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें एक मेडिकेशन रिव्यू एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो मेडिकेशन रिव्यू के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपने देखना है डेली बेसिस पे। आपने पेशेंट की लैब इंडिकेशन को देखना है, उसकी क्रिटिकल जो लैब्स होती हैं उनको देखना है। लैब में जो इम्पोर्टेंट लैब्स होती हैं वो कुछ डिजीज बेस पे होती हैं, और कुछ आप अपनी मेडिकेशन दे रहे होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो लैब्स होती हैं उन सारी लैब को देना। एंटीबायोटिक जा रही है तो इन्फेक्शन के रिलेटेड जो लैब होती हैं आप उनके इन्फेक्शन मार्कर को देखना। तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस होती हैं उनको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद आप देखते हैं कि उनकी डोज, ड्यूरेशन, जो कम्बिनेशन जा रही है वो सारी ठीक है। कुछ उनकी सपोर्टिंग थेरेपी चाहिए होती है पेशेंट को, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं तो उसको डीवीटी प्रोफिलैक्सिस चाहिए होती है, जीआई प्रोफिलैक्सिस चाहिए होती है, क्योंकि इन पेशेंट जो आईसीयूज में अगर कोई पेशेंट है तो उसको एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं, आइनोट्रैप्स चल रहे होते हैं, और उसके बाद सेडेटिव जा रहे होते हैं, एनाल्जेसिक जा रहे होते हैं। तो उनकी वजह से ना वो जीआईटी इफेक्ट होते हैं, तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आप उनको मेडिसिन देते हैं और उनकी रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
कि जब भी आप जिन ड्रग की थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें कुछ क्रिटिकल ड्रग्स होती हैं, जैसे आप वेनकोमाइसिन की बात कर लें, अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात कर लें, या फिर एंटी सीजर्स की बात कर लें। तो ये सारी वो ड्रग्स होती हैं जिनके एक सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर ये ड्रग सब थेराप्यूटिक होती हैं तो फिर भी पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें एक गैप आता है, और फर्दर पेशेंट की कंडीशन जो होती है, डिजीज जो होती है, वो वर्सन हो सकती है। तो इसलिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक अपना इम्पोर्टेंस रोल रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है इन क्रिटिकल एरियाज में। तो हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी होती है। उससे ये होता है कि आपकी जो ड्रग होती है वो एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और दूसरा ये कि जिस ट्रीटमेंट के लिए आप दे रहे होते हैं आपको उस चीज़ का ये होता है कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से पता चलता है कि ड्रग का इफेक्ट जितना आप चाह रहे हैं इतना पेशेंट में को मिल रहा है। तो उससे आपकी जो ट्रीटमेंट, ओवरऑल जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। उसके अलावा जो इससे टॉक्सिसिटी होती है या जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एडीआर रिपोर्टिंग, ये एक बहुत बड़ा एडीआर रिपोर्टिंग जितनी भी होती है, इससे हमें मेडिकेशन सेफ्टी में हेल्प मिलती है कि हम जो जितने भी एडीआर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक अगर हम उनकी रूट काज को देखें तो बहुत सारे एडीआर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होते हैं, कि आपने रैपिड इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर की उसकी वजह से एडीआर आ सकते हैं। और डोज की वजह से एडीआर की, मतलब एक डोज आपने ज़्यादा दी तो उसकी वजह से आ सकते हैं, डोज एडजस्टमेंट नहीं थी तो उसकी वजह से आ रहे हैं। तो ये जितने भी एडीआर्स होते हैं कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करते हैं कि आप मेडिकेशन सेफ्टी को इनहेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि एक जो ट्रीटमेंट होती है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कि आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि आपके प्रोटोकॉल जो हैं उनके अकॉर्डिंग आपने डोज, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अगर एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं, कौन सी ड्रग हैं जो कम्बिनेशंस में दे सकते हैं, फिर उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी कंप्लायंस की मॉनिटरिंग करना, और उसकी कंप्लायंस की मॉनिटरिंग के बेस के ऊपर उसको स्टैंडर्डाइज करना कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसमें कोई एडिशन या डिलीशन की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें आप ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं, और बहुत सारे जो उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं वो उससे कम हो सकते हैं। उसके अलावा स्टाफ और पेशेंट की एजुकेशन होती है। तो पेशेंट की एजुकेशन रिलेटेड वही है कि आपने मेडिसिन किस तरह लेनी है, कितनी लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है, और उसके जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उनको बताना है। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, ड्रग के एडीआर्स होते हैं जैसे उनके स्टूल या यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। कुछ एडीआर्स होते हैं जिनसे कफ वगैरह होती है तो आप उनको बता देते हैं। कुछ ड्रग्स की वजह से डायरिया वगैरह होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ड्रग की वजह से कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से आप ड्रग को होल्ड नहीं करते, अलबत्ता आप पेशेंट को प्रिवेंशन का बताते हैं। तो ये एजुकेशन हो तो वो जो एक पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर एक कोई गैप आ सकता है, आप उसको उसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टाफ की एजुकेशन के अंदर आप जितना भी हेल्थ केयर स्टाफ होता है उसको राइट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, कि आप इसकी मेडिकेशन की क्या, के मेडिकेशन, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ को आपने उसकी प्रॉपर डाइल्यूशन का बताना है। क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे रेडी टू यूज़ फॉर्म में हमारी ड्रग नहीं जाती हैं। तो इसलिए हमें फिर नर्सिंग स्टाफ को उसके अकॉर्डिंग एजुकेट करना होता है कि इसको कैसे डाइल्यूट करना है, इसकी डाइल्यूशन कितनी बनानी है, उसकी स्टोरेज कितनी है, कितने टाइम तक उसको स्टेबल रह सकता है, उसको री एडमिनिस्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी इन्फ्यूजन की ड्यूरेशन कितनी होती है। फिर उसके साथ जब भी आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो उसमें पेशेंट की क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, ग्लूकोज को मॉनिटर करना है। तो जो भी जिस ड्रग के रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनके अकॉर्डिंग स्टाफ की एजुकेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं वो कम होते हैं, और अल्टीमेटली का आउटकम ये होता है कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है और ट्रीटमेंट से जो हम आउटकम चाह रहे होते हैं, जो रिजल्ट का चाह रहे होते हैं वो हमें क्लिनिकल आउटकम मिलता है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के अंदर भी क्या आपने एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के डिफरेंट पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है
कि आपने IV टू ओरल स्विच करना है नहीं करना, एंटीबायोटिक की एम्पेरिकली कब तक दे सकते हैं, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज के लिए कितने टाइम के लिए आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, और और इसके अलावा जो भी आपके डिफरेंट गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको आप करते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के KPIs होते हैं जिनको फार्मासिस्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक की कम्बिनेशंस के कौन कौन से कम्बिनेशन एक साथ में दे सकते हैं नहीं दे सकते। फिर कोई इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक की, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये फार्मासिस्ट अपने मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के एक अलग से क्लिनिकल राउंड्स होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट अपना इनपुट देता है कि इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक जानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं जानी चाहिए। और एंटीबायोटिक के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, कोई न्यू गाइडलाइंस आती है या न्यू सजेशंस होती हैं, वो सारी हम अपने ID कंसल्टेंट के साथ शेयर करते हैं। और फर्दर उसमें अगर हमें कोई एंटीबायोटिक यूज़ में कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंजिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें कोई प्रोटोकॉल या गाइडलाइन बनानी होती है, तो वो कंसेंसस के थ्रू हम उस पर काम करते हैं ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। ये एक शॉर्ट सी AI जनरेटेड वीडियो है जिसका सिर्फ पर्पस एजुकेशन पर्पस की कैसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती है। ये एक केस सिनेरियो है जिसके अंदर फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम पे AI जनरेटेड वीडियो है। Hey everyone, let's step into the heart of the ICU for a moment, right as the morning team meeting kicks off. Picture this. A critically ill patient named Ahmed, aged 68, admitted last night with sepsis from pneumonia. The team gathers around, each member ready to share their insights. Dr. Abid, our intensivist, leads the charge. He turns to Nurse Sana for an update. She's on point. Ahmed's on norepinephrine for blood pressure, IV fluids, and piperacillin tazobactam for infection. His fever's holding on, but his oxygen saturation is improving with supplemental O2. She's keeping a close eye on his urine output and overall stability. Dr. Abid nods, then passes it to RT Aitsham. Respiratory status? Ahmed's on 40% FiO2 via nasal cannula. Stable work of breathing, but needs close observation. Now it's the pharmacist's time to shine. This is where pharmacist Gulzaib steps up. Medication management in the ICU isn't just about handing out drugs, it's about strategy. First, dose optimization. Gulzaib suggests checking Ahmed's creatinine clearance to make sure the antibiotic dose is spot on. Why? Because in sepsis, kidneys can take a hit, and the right dose is crucial. Not too much, not too little. Second, vasopressor management. Norepinephrine's doing its job, but if Ahmed's blood pressure gets harder to manage, adding vasopressin might help reduce norepinephrine needs and side effects like arrhythmias. Third, prophylaxis. Stress ulcers and blood clots are common ICU complications. Gulzaib notes there are no orders for stress ulcer or DVT prophylaxis yet. He recommends starting pantoprazole and enoxaparin, unless there's a reason not to. Fourth, medication reconciliation. Ahmed's on lisinopril at home for high blood pressure, but right now, that could make things worse. Gulzaib advises holding it until Ahmed's blood pressure is stable. And finally, adverse event monitoring. Broad-spectrum antibiotics can lead to C. difficile infections. If Ahmed develops diarrhea, the team should be ready to test and treat. Dr. Abid agrees with all the points, orders the tests, adjusts the meds, starts the prophylaxis, and holds the lisinopril. That's multidisciplinary teamwork in action. Every voice matters, and every detail counts. So, what's the takeaway here? The pharmacist isn't just a medication expert, they're a key player in patient safety. Dose adjustments, preventing complications, spotting risks, and ensuring every medication order makes sense for each patient's specific situation. This is how ICU teams save lives, together. Every patient, every day, benefits from collaborative care. Thanks for tuning in, and a special shout out to pharmacists everywhere.
making a difference behind the scenes. Stay sharp, stay compassionate, and keep saving lives together. When you talk about the integration of clinical pharmacists in multidisciplinary team, everyone is asking about the outcome कि क्या बेनिफिट है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में अगर शामिल करते हैं तो उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसमें ना सबसे पहले ये है कि फार्मासिस्ट की जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से मेडिकेशन एरर जो होते हैं और उसके एडवर्स इवेंट जो होते हैं वो कम होते हैं, थेराप्यूटिक एफिकेसी बढ़ सकती है, जिसमें फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करके जो ओवरऑल मेडिसिन होती हैं उनकी एफिकेसी को इनहेंस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, उसकी उसके थ्रू कर सकता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को कम करके उसके थ्रू कर सकता है, प्रॉपर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो उसके थ्रू कर सकता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके थ्रू फार्मासिस्ट अपना एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो वेंकोमाइसिन की एग्जांपल अगर दी जाए तो वेंकोमाइसिन रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से वेंकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जब वो रिएक्शन हो जाता है तो वो एक एडवर्स ड्रग इवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जिसकी वजह से आप पेशेंट की ओवरऑल ट्रीटमेंट है उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करवा के कितने टाइम के अंदर उसकी डाइल्यूशन कितनी होगी, डाइल्यूट कौन सा होगा, तो उसके थ्रू उसकी एफिकेसी को एनहेंस कर सकता है। और डेफिनेटली जब मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कम होंगे, एरर कम होंगे, ड्रग इवेंट्स नहीं होंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं होंगे, प्रॉपर मेडिसिन का यूज होगा, तो उसकी एफिकेसी इनहेंस होगी, तो लेंथ ऑफ स्टे भी कम होगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन और एडहेरेंस भी इंक्रीज होगी। अब बहुत सारी जगहों पे जो फार्मासिस्ट होते हैं एज ए स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, जैसे आईसीयूज के अंदर फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर कार्डियोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, पीडियाट्रिक के अंदर काम कर रहे हैं। तो हर एक डिफरेंट एरिया के अंदर फार्मासिस्ट का डिफरेंट रोल होता है। जैसे आईसीयूज के अंदर वो डोज एडजस्टमेंट, रीनल हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक अगर कोई एंटीकोगुलेंट यूज कर रहा होता है तो एंटीकोगुलेंट के साइड इफेक्ट की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट, अगर उनकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो उससे एक मेजर उनके साइड इफेक्ट होता है जो ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं। और अगर ब्लीडिंग सीवियर ब्लीडिंग होती है तो लीडिंग टू डेथ भी हो सकती है। तो फार्मासिस्ट जैसे वारफरीन किसी पेशेंट को जा रही है तो उसके लिए आईएनआर मॉनिटर करके, किसी पेशेंट को हेपेरिन जा रही है तो उसके लिए एपीटीटी मॉनिटर करके और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको वो कम कर सकता है और मेडिकेशन एरर को रिड्यूस कर सकता है। इसी तरह ऑन्कोलॉजी के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनकी स्पोर्टिंग कीमोथेरेपी के अंदर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना और उनकी मॉनिटरिंग करना और उनके जो रिस्क होते हैं उनको कम करना। इस तरह पीडियाट्रिक जो होते हैं वो स्पेशल कैटेगरीज होते हैं, वो अडल्ट से टोटल डिफरेंट होते हैं, उनकी डोजिंग डिफरेंट एज रेंज टू डिफरेंट एज रेंज के लिए डिफरेंट्स होती हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक टेलर्ड डोजिंग करना और स्पेसिफिक पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी डोज, उसकी थेरापी, उसके रेजिमेंट को एडजस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो क्लिनिकल फार्मेसी प्ले करते हैं और डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट ओवरऑल पेशेंट के आउटकम पे आता है। अगर आप देखें तो आप जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं इनके इम्पैक्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि क्या जब जहाँ जहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट राउंड कर रहे हैं तो उनके इम्पैक्ट को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिनकी बेस पे हम वो उनके फार्मासिस्ट के रोल को इनहेंस कर सकते हैं उनको, कि ये फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन की वजह से ये चीज़ें हों। तो उसमें पहली चीज़ ये कि जो पेशेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड राउंड के दौरान इंटरवेंशन कर रहा होता है और फिजिशियन उनकी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। डेफिनेटली आपकी इंटरवेंशन तभी एक्सेप्ट हो रही होती है जब उसके कुछ क्लिनिकल बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, तो आप उनकी परसेंटेज को मॉनिटर करते हैं। अब रहा कास्ट सेविंग को देखते हैं कि कास्ट सेविंग कितने, कि अगर कोई
अननेसेसरी मेडिसिन होती है या कोई थेराप्यूटिक डुप्लीकेशन किसी भी तरह की, या फिर किसी पेशेंट का रीनल हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट होती है, उनके थ्रू आपके कितनी कॉस्ट सेव करते हैं वो। और उसके अलावा आप ओवरऑल देखते हैं कि इससे पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट या कि ओवरऑल इंटरवेंशन से पहले कितने मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके एरर्स वगैरह रिपोर्ट हो रहे थे, और फार्मासिस्ट के राउंड के बाद और उसके इंटरवेंशन के बाद कितने परसेंट वो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनमें डिक्रीज आया है। इसीलिए कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब भी आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स के साथ हो, नर्सेस के साथ हो, या किसी हेल्थ केयर टीम के साथ। जब भी आपकी कम्युनिकेशन हो, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर के रिस्क बढ़ सके। उसके अलावा आपने जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक्यूरेट डॉक्यूमेंट करना होता है। जिस तरह सोप एंड फार्म नोट के आपने प्रॉपर मेडिकेशन के यूज़ का लिखना है, आपकी जो सजेशंस हैं, जो प्लान्स हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग्स हैं, या फिर जो भी अगर कोई लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन जा रही है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट की प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ हैं, वो मिस है, आपने वो ऐड कर देनी है। कोई उसकी डिजीज या फिर कोई जैसे इलेक्ट्रोलाइट किसी के हैं तो उसमें अब नॉर्मेलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो वो आप अपने कमेंट्स में डॉक्टर को, फिजिशियन को सजेस्ट करते हैं और अपना पूरा प्लान लिखते हैं, ताकि जितनी भी कम्युनिकेशन हो वो आपकी डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि अगर उस पर अगर कोई प्लान या कोई अगर फर्दर उसके पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें फिर डिले ना आए। तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसकी वजह से भी जो ओवरऑल मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एरर्स होते हैं वो कम होते हैं। डेफिनेटली जब आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं तो uh, आपको फार्मासिस्ट को अपनी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना होता है कि हम कैसे न्यू 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 रिसर्च के साथ न्यू जितनी भी डेवलपमेंट आ रही होती है उनके साथ कैसे हम अपने आप को अपडेट करें। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप प्रिसेप्टिंग करते हैं, फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनके साथ कर रहे होते हैं। उसके बाद अपने सर्विसेज के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। गाइडलाइन प्रोटोकॉल उनको बनाने में आप कंटिन्यूसली उसमें हेल्प कर रहे होते हैं कि कोई भी नई अगर गाइडलाइंस होती हैं तो उनको एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन की बेस पे आप उनको अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ हैं जिनको आप इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी पर्सनल जो डेवलपमेंट होती है आप उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद क्या एज ए फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बैरियर क्या हो सकते हैं, उसमें एक चीज़ है जो रोल क्लैरिटी एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, कि हमें क्लियर नहीं होता कि हमारे क्या रोल्स हैं और हमने क्या क्या करना है, और साथ में प्रोफेशनल बाउंड्रीज की हमारी क्या है, कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब ये हमारा रोल एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्लियर हो जाती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम अपने जो मेन टास्क होते हैं, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंट टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स। अब देखिए बहुत सारी जगहों पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं होता तो उसमें ना आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना आपको चाहिए कि ये आपके लिए जो चैलेंज और बैरियर है इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ है कि जब भी आप कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास स्ट्रांग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपने फार्मासिस्ट का रोल डिफाइन होना चाहिए। इससे पहले अगर कोई स्टडीज हुई हैं जो आपके पास एविडेंस है, उन एविडेंस को डॉक्यूमेंट करके और उसके साथ आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के फार्मासिस्ट क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसके बेनिफिट्स को और सारी चीज़ों को जब आप एक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो वो आपको हेल्पफुल हो सकती है कि जो आपको ये रेजिस्टेंट आ रही है आप इसको कम कर सकते हैं।
उसके अलावा आपके पास लिमिटेड स्टाफ होते हैं कि जहाँ पे भी अगर फार्मासिस्ट होते हैं तो वहाँ पे वो कम होते हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम में फार्मासिस्ट के बहुत सारे टास्क होते हैं जो कर रहा होता है। तो ये बहुत सारे चैलेंज होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी एफर्ट्स की वजह से और डिफरेंट कोलिब्रेशन की वजह से और गाइडेंस के थ्रू हम ये जितने भी चैलेंज हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं। उसके उसके बाद कि दुनिया क्या चाह रही है, कि ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इवॉल्विंग रोल्स के फार्मासिस्ट से क्या चाह रहे हैं कि दुनिया किस साइड पे जा रही है। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइबिंग राइट आ गए हैं, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन इनटू द वर्चुअल टेली फार्मेसी के अंदर बहुत सारे फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। उसके बाद लीडरशिप इन मेडिकेशन पॉलिसी एंड क्लिनिकल गवर्नेंस। तो ये आने वाले वक्त की वो चीज़ें हैं जिसमें डेफिनेटली ये वाली डेवलपमेंट फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी होंगी। क्या अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में यह है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर integral part to the multidisciplinary team within the hospital. Their expertise improves safety, efficacy, and outcome. Ongoing collaboration is essential to maximize the impact. तो जब भी फार्मासिस्ट आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ काम करते हैं, तो उस टीम में जब आप एज ए टीम काम कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल। जैसे इनिशियली मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो टीम होती है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। तो अगर हम एक ही प्रोफेशनल के लोग किसी ग्रुप में काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग जब एक साथ काम करते हैं तो उन दोनों का डिफरेंट का इम्पैक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद फर्दर एक हमारा क्वेश्चन क्विज है, हम उसकी तरफ जाएंगे और उसके बाद आपके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। जी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द वार्ड राउंड by making nursing shift schedule, by ensuring availability of surgical instrument, by providing real time medication reconciling, by assigning beds to patient. Question 2 है, what impact do clinical pharmacists have on hospital outcome? Increase in adverse drug event, reduction in medication related problem, increase in readmission rates, delay in patient discharge. Question third है, which area is the part of clinical pharmacist active involvement in quality improvement? Gardening in hospital courtyard, conducting community vaccination, participating in research and guideline development, writing diet plan for patient. Question 4 है जी, what does antimicrobial stewardship by pharmacist aim to achieve? Reduce patient visit, promote antibiotic resistant, increase use of broad spectrum antibiotic, ensure rational antibiotic use to prevent resistance. Question 5 है, which one of the following is a challenge clinical pharmacists face in multidisciplinary team? Resistance from traditional care model, unlimited prescribing right anywhere, excessive free time, lack of access to medication databases. Question 1 answer is C, by providing the real-time medication recommendation. Question 2, what impact does clinical pharmacies have on hospital outcome? Answer is reduction in medication related problem. Question 3, which area is part of clinical pharmacist active involvement in quality improvement? Answer is participating in research and guideline development. Question 4, what does antimicrobial stewardship by pharmacists aim to achieve? Ensure rational antibiotic use to prevent the resistant.
Question 5. Which one of the following is a challenge clinical pharmacists face in multidisciplinary team resistant from traditional care models? Thank you. Sir, we have few questions. Muhammad Uzair, in private hospital where pharmacists only see handwritten prescriptions and no access to labs or clinical data, how can we move beyond basic dispensing and contribute more meaningfully to patient care? As I already discussed that अगर हम फार्मासिस्ट के सर्विसेज को या उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद इन द फैसिलिटीज़, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसके अंदर कि फार्मासिस्ट अगर ये वाले रोल प्ले करेगा, अगर पेशेंट की फाइल को रिव्यू करेगा, उसके पास लैब की एक्सेस होगी, सारी चीज़ें होगी, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके साथ आप डिफरेंट जगह पे सक्सेसफुल स्टोरीज उनके साथ कोट करें कि ये हमारी सक्सेसफुल स्टोरी है, यहाँ पे हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, ये हमारे फार्मासिस्ट इन इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब हम अब ये एक डॉक्यूमेंट कि आप हमारा फार्मासिस्ट कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, और उसके जो प्राइमरी टास्क हैं वो कंप्रोमाइज नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जब आप किसी भी के मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं तो वो ज़रूर इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। देखें, हम सबका एक कॉमन गोल है, वो गोल यही होता है कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उससे पेशेंट को फ़ायदा हो। तो जब हम कोई ऐसा एक एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हम उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, तो होपफुली हमारा जो रोल है वो इनहेंस होगा और लोग एक्सेप्ट करेंगे। Sir, the second question is, if the loading dose were missing by the doctor, will the drug can show his own effect regarding the disease for which they have prescribed, like in case of vancomycin? देखें, जब भी वेंकोमाइसिन की अगर आप बात करें तो अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो डेफिनेटली आप उसके ट्रफ लेवल चेक करें। ट्रफ लेवल जब आप चेक करेंगे तो जो लेवल आएंगे उनके रिजल्ट पे आपको रीमोडिफाइड आप कर सकते हैं डोज। इसके लिए आपके पास आजकल डिफरेंट ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जो आपको एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप इसको लोडिंग डोज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखें, उसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि फार्माकोडायनामिक जो होते हैं कि आपका क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का कितना होगा, कितने टाइम में होगा, उसका सीरम क्रेट कितना होगा, उसकी अगर प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है तो उसकी एल्ब्यूमिन कितनी है, तो ये सारी चीज़ों को वो कंसीडर करते हैं और करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मिस हो गई है तो आपकी रिकमेंडेड 1 to 2 डोजेस चली गई हैं, तो आप उसके बाद बेहतर यही है कि आप उसके लेवल करवाएं। लेवल करवाने के बाद अगर आपको दोबारा लगता है लो डोज लेवल कम है तो आप उसको रीडोज लोड करके फिर दोबारा से उनकी रीडोजिंग कर सकते हैं। The next question is how to become a clinical pharmacist in Pakistan. देखें, मेरे हिसाब से कोई भी फार्मासिस्ट है, कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट कोई पोजीशन नहीं होती, ये एक रोल होता है जो हमारे ओवरऑल फार्मासिस्ट जहाँ जहाँ काम कर रहे होते हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए आपको अपनी इंटरेस्ट, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी, आपने अपने जिसको कहते हैं कि नॉलेज को इम्प्रूव करें, स्किल को इम्प्रूव करें। देखिए, आपके जो स्किल्स होते हैं वो हर जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं, क्लिनिकल स्किल जो होते हैं, ये सारे आपकी हेल्प करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे आप देखें, थोड़ा टाइम लगता है। आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद आप फोकस करें और अपनी क्लिनिकल स्किल को इम्प्रूव करें, और कुछ टाइम के बाद आप इंशाल्लाह क्लिनिकल फार्मासिस्ट होंगे। The next question is Saddam Hussein. Why in most of the hospitals don't have clinical pharmacists? How they manage the medication at their ward level? देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो रोल है और
ये आस्ता आस्ता ये चीज़ें बढ़ रही हैं. डेफिनेटली वी आर द फार्मासिस्ट, वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू इनहेंस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एवरी फैसिलिटीज़. तो उसके लिए ये होता है कि देखें, हमें एफर्ट्स करनी होती है एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. हम वहाँ पे हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें. देखें, जब भी हम करेंगे कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे. अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप क्लिनिकल राउंड करें. अगर आप राउंड नहीं कर सकते तो मेडिसिन को चेक करें और उनके अंदर जितने जितने भी एरर्स होते हैं, मेडिकेशन एरर्स होते हैं, उनको हाईलाइट्स करें. उनके जो एडवर्स ड्रग होते हैं उनको मॉनिटर करें. तो आपकी सर्विसेज की वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट के लिए इनकरेज करते हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए. The next question is Noor Fatma. Is integration necessary for serious disease only? नहीं, देखें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको एरिया, देखें हॉस्पिटल में डिफरेंट एरियाज होते हैं. आपने मोस्टली उस एरिया में इंटीग्रेशन पे इनिशियली फोकस करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं. वो कौन कौन से एरिया होते हैं? एक क्रिटिकल एरियाज होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद वो एरिया जहाँ पे आपके मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं, पोली फार्मेसी जहाँ पे होती है वो होते हैं. तो आप एरिया टारगेट करें कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं और कहाँ कहाँ से पे सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. तो आप उन एरिया में आप क्लिनिकल रोल को इंटीग्रेट करें. Muhammad Uzair, in private hospitals where pharmacists only see handwritten prescriptions. I want to work as a clinical pharmacist, but I am fresher, zero knowledge regarding practical. Please guide how I learn all these things regarding medicine dose adjustments and drug interactions. देखिए, आप ये चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि आप अपने क्लिनिकल नॉलेज को और स्किल्स को आप इम्प्रूव करें. डेफिनेटली जब आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे आप ये चीज़ें लर्न करना शुरू करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो थियोरेटिकली आपको नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो उनको आप देखते हैं. तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं. इंसान कोशिश करता है तो कोशिश करने के साथ साथ सब कुछ सीख जाता है. तो होपफुली आप हार्ड वर्क करें. हार्ड वर्क के बाद इंशाल्लाह आपका जो गोल है वो अचीव होगा. Thank you so much, Mr. Mohammad Gulzair, for your insightful lecture and for taking the time to share your expertise on this important topic. Before we conclude, I kindly ask all the participants to fill out the feedback form that will be shared with you by email. Your feedback is valuable to us